कार्यकर्ता आंदोलन की शुरुआत की थी। पेशे से पन्नीकर जी शिक्षक थे। उन्होंने 1926 में अपने जन्म स्थान से सनातन धर्म पुस्तकालय शुरू किया। 1945 में उन्होंने केरल के कस्बों और गांवों में फैले 6000 से भी अधिक पुस्तकालयों को नेटवर्क में विकसित किया। 19 जून 1995 को इनकी मृत्यु हो गई थी। मृत्यु के एक वर्ष पश्चात 19 जून को एक सप्ताह की गतिविधियों के साथ व्यास दिन अर्थात पढ़ने का दिन के रूप में मनाना शुरू किया। स्कूल और सार्वजनिक संस्थाओं को शिक्षित करने के लिए पन्नीकर जी के योगदान का सम्मान देने के लिए इनके द्वारा दिए गए नारे पढ़ो और बड़ों को शक्तिशाली आंदोलन में बदल दिया गया। केरल राज्य को पूर्ण साक्षर राज्य बनाने का श्रेय भी पन्नीकर जी को ही जाता है। माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी 19 जून 2017 को केरल गए थे। वहां पर उन्होंने 22वें राष्ट्रीय वाचन डिजिटल वाचन महासमारोह का शुभारंभ किया। पन्नीकर जी की स्मृति को बनाए रखने के लिए, इनको श्रद्धांजलि देने के लिए राज्य सरकार ने एक डाक टिकट भी इनको पर जारी किया। यूनेस्को द्वारा भी इन्हें पुरस्कार दिया गया। ऐसी महान आत्मा को मैं शत शत नमन करती हूँ और आगे के कार्यक्रम के लिए अपने प्राचार्य जी को आमंत्रित करती हूँ। जय हिंद। Well, thank you, Neeta ji. First of all, I would like to welcome Professor J.A. Siddiqui ji to this web goshti on the International Reading Day. And I would also like to welcome Shrimati Pushpa Sharma ji, who has been associated with the library for or throughout her life. So first, I would like to give us, a very huge introduction of Professor Siddiqui ji, because we have received a very huge biodata of Professor Saab. So he is BSc Honors, MSc, MLiv, MPhil, PhD from AMU Aligarh University. Present positions in the university: he is Deputy Librarian, he had been a coordinator, he has been Vice President, he is a member, he is convener, and he is SPOC National Program through Enhanced Learning, NPTEL, chapter at Chaudhary Charan Singh University at present. He is convener of Board of Studies of BLIS and MLIS courses and coordinator Shodh Ganga. He has held different positions over the years. He has been an assistant controller, campus examination, deputy controller in various examinations. And he has been a member, National Advisory Board. He has been a member of various advisory bodies, National Advisory Board, Library, member of Editorial Advisory Board, Professional Journal of Library, Information Technology, member of Advisory Board, Shodh Gyanantika, member National Advisory Board, Gyan Kosh, a Journal of Library, Information Technology Management. Well, he has many papers to his credit in number of national and international journals, and a good number of papers he has published. 53 papers have been published under him, and he has published 5 books. And MLIS's dissertation he has supervised 85, and PGDLAN supervised 1, and MPhil supervised 9. He has been invited as a guest speaker, special lecturer, and resource person in various universities, which amounts to 88 presentation, workshop and conference attended, which goes to 34, and paper presented in workshops and seminars and conferences, 20 papers, and conference, seminars, workshops, exhibitions organized, 26, and refresher course attended, 2. So this is a huge biodata of CV of our J.A. Siddiqui ji, and he has achieved a lot of awards and lot of achievement he has to his credit. Sir, we are very thankful to you that you have spared your precious time for this web goshti today. And today's topic
today's topic that we were discussing, that is National Reading Day. Reading has become a very important part of our life. You know, without reading, you know, we feel that we are nowhere. And as Francis Bacon has said, reading makes us a perfect person and or a good human being. So reading, we should encourage our students, our staff, and our faculty members to read daily. And even we, Professor Siddiqui would be very surprised to know that we started, you know, in the classes that students will read out the daily news. So that they should develop a kind of you know, habit of reading. So one should be a compulsive reader. So when we say that he's a compulsive reader, so we really appreciate it that yes, he or she is a compulsive reader. So reading is very basic to education. So one should be quite adept in it. And I would like to invite Professor J.A. Siddiqui to give his or deliver his address on National Reading Day. Professor Siddiqui. Thank you, Professor Seema Jain. एक बहुत ही कर्मठ प्रिंसिपल के रूप में तो आप जानी ही जाती हैं। आज एक नई बात भी मुझे सीखने को मिली कि आपकी ये भी तारीफ है कि आप तारीफ बहुत अच्छी करती हैं। मैं मात्र पुस्तकालय विज्ञान का एक विद्यार्थी हूँ और आप जैसे सजाए गए प्लेटफॉर्म पर मुझे कुछ सीखने का अवसर मिलता है और सबसे ज़्यादा खुशी मुझे इस बात की होती है कि जब मैं पुस्तकालय विज्ञान के लोगों से वार्ता करता हूँ। सर्वप्रथम मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ हृदय से कि आपने मुझे इस योग्य समझा और मुझे एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया जिससे मैं अपने विषय के बारे में कुछ बात कर सकूं। मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं डॉक्टर संतोष कुमारी जी का सोशियोलॉजी विभाग से, जिन्होंने, मैं समझता हूं कि इस कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की होगी जैसा कि मुझे प्रतीत हो रहा है। मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं श्रीमती नीता भटनागर जी का, जो कि आपके महाविद्यालय के पुस्तकालय को व्यवस्थित कर रही हैं, संचालित कर रही हैं। लेकिन श्रीमती भटनागर जी मुझे जमाल सिद्दीकी कहते हैं, जमील सिद्दीकी नहीं कहते हैं। ये थोड़ा सा आप इसको नोट कर लीजिएगा। और मुझे खुशी है इस बात की कि डीओई कॉलेज मुजफ्फरनगर की फॉर्मर लाइब्रेरियन पुष्पा शर्मा जी भी आज इस गोष्ठी में उपस्थित हैं। मैं उनको भी नमस्कार करता हूं और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं जेकेपी पीजी कॉलेज मुजफ्फरनगर का कि उन्होंने नेशनल रीडिंग डे पर ये गोष्ठी का आयोजन किया। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि चौधरी चंद सिंह विश्वविद्यालय से संबद्ध लगभग 850 कॉलेजेस में जेकेपी पीजी कॉलेज मुजफ्फरनगर पहला महाविद्यालय है जिसने इस बारे में सोचा। मैं बधाई देता हूं डॉक्टर सीमा जैन को। काफ़ी कुछ तो नीता भटनागर जी ने पनीकर जी के बारे में कह दिया, बता दिया। दो बेसिक बातें थीं और जो आवश्यक और महत्वपूर्ण भी थी। मैं सर्वप्रथम उनको नमन करता हूं, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और ये भी कहना आवश्यक समझता हूं कि आज हमारे देश के अंदर पुस्तकालय का जो अस्तित्व है उसमें पनीकर साहब का बहुत ही बड़ा योगदान है। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं कि आज भी लाइब्रेरियन को वो स्थान प्राप्त नहीं है जिसके लिए वो योग्य है।
और इसमें यह भी सत्य है कि जिस पैरामीटर से टीचर्स को नापा जाता है उस पैरामीटर से लाइब्रेरियन को नहीं नापा जाता, और उसका जिम्मेदार मैं लाइब्रेरियन को मानता हूं। यदि लाइब्रेरियन अपनी पावर को समझे, महसूस करे, अपनी लेवल को, अपने कैडर को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अगर वो महसूस करे तो वो एक बड़ा बदलाव ला सकता है। पनिकर जी इसी लाइन पर काम करने वाले व्यक्ति थे, और जैसा कि डॉक्टर सीमा ने कहा कि रीडिंग हैबिट जो है वो केवल नेशनल रीडिंग डे पर ही सोचने या मंथन करने की बात नहीं है। हर दिन हमें इस बारे में गंभीरता से सोचना होगा, और ये एक अच्छा संकेत भी है, जैसा कि आपने कहा कि बच्चे न्यूज़पेपर और डेली न्यूज़ की आदत बना रहे हैं। ये एक अच्छा संकेत है महाविद्यालय के लिए। जो सबसे अहम बात पनिकर साहब ने रीडिंग के संबंध में कही थी वो ये थी कि रीडिंग एंड नॉलेज should not be limited only to work related aspects. इस सेंटेंस को ध्यान से सुनिए। Reading and knowledge should not be limited only to work related aspects, but it should help develop habits of social responsibility, service to the nation and service to the humanity. ये सपना था पनिकर साहब का। उनका मानना था it should cure the evils in society and nation. It should spread the idea of peace along with respect for unity and integrity of the nation. इस स्टेटमेंट से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हम केवल ये कह दें कि बच्चा लाइब्रेरी में आए और रीडिंग करे, उनका मकसद ये नहीं था। उनका मकसद ये था जो मैंने अभी बोला कि आप यदि निरंतर पढ़ोगे, पढ़ने की हैबिट बनाओगे, उससे समाज का विकास होगा। जब समाज का विकास होगा तो देश का विकास होगा, ह्यूमैनिटी का विकास होगा। वो सारी चीजें इंटरकनेक्टेड हैं रीडिंग हैबिट से। तो हमें इस तरह से उनके विचारों को, उनके सपनों को देखना होगा, और उनकी इस सोच को ध्यान में लेते हुए केरला सरकार ने 19 जून को डे ऑफ रीडिंग के नाम से लगभग पिछले 25 सालों से ये रीडिंग डे के रूप में मनाया जा रहा है। और इसका खास मकसद ये है जस्ट टू एनकरेज द हैबिट ऑफ रीडिंग अमंग पीपल, स्पेशली द यूथ। हमारे नौजवान आजकल सब कुछ करने को तैयार है, लेकिन रीडिंग करने को तैयार नहीं, पढ़ने को तैयार नहीं। और जबकि पनिकर साहब ने ये बात उस जमाने में सोच ली थी कि यदि ह्यूमैनिटी, समाज, देश को अगर हमें विकसित करना है तो हमें अपने नौजवानों के अंदर रीडिंग हैबिट को डेवलप करना पड़ेगा। टुडे आवर हेड्स bow in reverence to the memory of late T.N. Panikkar Sahab, the father of the library movement in Kerala. How he began the movement in 1945 and enabled 45 libraries to grow into a network of more than 6,000 libraries is too well known to be recounted here on this particular day of his death. His famous slogan, "Read and Grow," as Dr. Seema has pointed out, had such an impact that
Very soon, Kerala became nationally known as one of the most literate states with a very high level of social awareness. आज हम देखते हैं कि पूरे देश में सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट जो है वो केरला स्टेट में है, और ये केवल और केवल पनिकर साहब के प्रयासों का ही परिणाम है कि वो हमेशा रीडिंग को ज्यादा महत्व देते थे, विशेष रूप से युवाओं के बीच। पीएन पेनिकर साहब ने एक फाउंडेशन की स्थापना की, टुगेदर विद ए नंबर ऑफ गवर्नमेंट एजेंसीज, प्राइवेट सेक्टर्स एंड सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, is leading an initiative of reading culture. Their target is to reach 300 million underprivileged pupil by 2022. आप देखिए कि जो फाउंडेशन उन्होंने स्थापित की, उस फाउंडेशन का ये टारगेट है कि वर्ष 2022 तक हमें तकरीबन 300 मिलियन अंडर प्रिविलेज्ड पीपल को जोड़ना है। The main objective of this mission is to promote reading as a means to grow and prosper. This is how he was thinking about the development of the society and the development of the nation, that we have to encourage the youth to read at regular intervals. Reading can help broaden one's thinking. A well-read population will help definitely India excel globally. और हम अभी तक क्यों विकासशील देशों में हमारी गिनती है, इसलिए कि हमारा जो साक्षरता रेट है वो काफी पीछे है। जब तक हम देश के युवाओं को शिक्षित नहीं कर पाएंगे, रीडिंग हैबिट और रीडिंग कल्चर डेवलप नहीं कर पाएंगे, तो देश हमारा विकास नहीं कर सकता। Panikar Foundation is also working with 18 public libraries at the moment in the state of Kerala in collaboration with Indian Public Library Movement, New Delhi. And the new reading devices may give the initial impression that they will fully replace the printed book. But these gadgets only add to the number of people who actually read. The effect of the new trend is visible in the approach of the P.N. Panikar Sahab Foundation. Also, decades ago, the late Panikar encouraged people to read the printed books. Today, his followers are popularizing digital libraries and e-books, considering the popularity of digitally available reading material. आप जरा कल्पना कीजिए कि उन्होंने उस समय अपने समय में रीडिंग की बात करी, प्रिंटेड पुस्तकों को पढ़ने की बात की, लेकिन जो फाउंडेशन उन्होंने स्थापित की, उनके लोग जो उनसे जुड़े हुए थे, उन्होंने समय की मांग को बहुत जल्दी से परख लिया था और प्रिंट डॉक्यूमेंट से वो स्विच ओवर करने लगे डिजिटल रिसोर्सेज की तरफ। यहां पेनिकर साहब का मकसद केवल रीडिंग है। रीडिंग के साधन, मोड्स, मीडियम अगर बदल जाएं तो कंसेप्ट वही रहेगा। आज के जमाने में डिजिटल एनवायरनमेंट में हम डिजिटल रिसोर्सेज की बात करते हैं, तो पेनिकर साहब का सपना जो है वो यहां भी प्रासंगिक है कि हम जो भी डिजिटल रिसोर्सेज हैं उनको पढ़ने की हैबिट डेवलप करें। मकसद यहां केवल रीडिंग हैबिट का है, यहां मकसद फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट का नहीं है, राइट। और इसी तरह से पेनिकर फाउंडेशन ने जो प्रिंट डॉक्यूमेंट्स थे उनको डिजिटल डॉक्यूमेंट्स में कन्वर्ट करने का काम प्रारंभ किया और डिजिटल एनवायरनमेंट के लिए तकरीबन 712 डिस्ट्रिक्ट इंडिया के इस फाउंडेशन से अभी तक जुड़ चुके हैं। द फाउंडेशन ऑल्सो इम्पार्ट डिजिटल लिटरेसी टू approximately 3.32 lakhs of rural people in many panchayats of Kerala.
Very good. This gesture of adopting to modern realities deserves our appreciation. Now, you can see with these facts and the work of foundation of Panikkar that his interest was only to develop the reading culture among the youth society. Now we have so many options for reading. What we require is only a motivation or a mentality that encourages us to seek knowledge through reading. The habit of reading would help us to develop our intellect, our sensibility, and our vision. But with too many options, we have to first of all decide on our priority in reading. This is what is basically required today for the development of the society and for the development of the nation. Our reading habit should therefore widen our knowledge and at the same time empower ourselves to make the right choice of books and online platforms to read. This empowerment is vital in our schools and colleges since there is a tendency among our students to depend on freely available material on the internet without checking their authenticity. This has affected their knowledge levels and the quality of the knowledge they have acquired. I have talked many times that today, not only the students, even the senior faculty members are totally dependent on the resources available on internet, what we call as Google. Everybody is using Google. If you take a survey, you will find more than 80% information seekers are using Google search engine for acquiring knowledge. पनीकर साहब ने कब कह दिया था ये बात कि we cannot rely on the information available on internet. We have to first check the reliability of the information. You can take an example. If you want to get the information through Google search engine, you just write knowledge management, right? In Google search engine, press enter key, you will find on the top right hand side crores of images, crores of pages. And how many of us go through the pages showed by Google search engine? We only go through only 5 to 6 pages, right? Who are you and who is Google that can decide that the first 5-6 pages that we have gone through are the most relevant pages for our purpose? The second problem is that I would like to mention over here that if Professor Seema Jain is looking for an information, say knowledge organization, and if she put the keyword knowledge organization in Google search engine, the Google will provide some information, right? On the other hand, if a chole wala will ask the Google the same topic, that is knowledge organization, the result will remain the same. Isn't so? Yes, it is. Yes. Because Google search engine cannot understand that Professor Seema Jain is a renowned scholar and the second gentleman is a chole wala. So it is only the librarian who can decide. It is only the librarian who can segregate. It is only the librarian who can filter the information depending upon the level of seeker of information. Isn't so? Yes. Though we must talk about computer application in libraries, I have delivered hundreds of lectures on computer application in libraries, the need of R, and I also talk about the characteristic of computer like speed, accuracy, decision making, flexibility, expandability, automatic operation. But my friends, don't forget
computer, in spite of the fact that has a number of characteristics, but computer has one demerit also, and that demerit vanishes all its characteristics, and that is the computer cannot think. This is the demerit of the computer, that vanishes all its advantages, because it is only the human being who has the ability to think. The human being is the only person on this particular globe who has the maximum ability to think because of sense organs. And these sense organs are fully responsible for the development and creation of knowledge. And though computer can reduce the workload, can help us. We have been using a computer in our libraries. We are having fully automated library, but we are not totally depend on this. We used to keep the backups. We used to keep the backup of each and every service provided by the library. So I, at this stage, would like to mention that though Google search engine is the most favorite search engine for present situation, I must tell you, Google is meant only for ready reference. If you are looking for an information related to writing a research paper, related to your PhD work, related to your lecture, you have to have a close look on the information available on internet, that if how this information is relevant, what is the reliability of this information, what is the authenticity of this information, what is the completeness of this information, and what is the dependency of this information. So I wish here, I'm very happy to see, and I would like to remind them to make reading a daily habit, because it opens a window to the world and enables you to grow up as world citizens. You may find more of English content in your digital reading, but you should make a conscious effort to find content in your own mother tongue also. This is another important aspect of the Google search engine. As you all are aware that the University Grants Commission has provided some guidelines regarding the PhD submission, and every research scholar has to find a letter of certificate certifying that the report is original, no similarity is found, and every thesis has to be checked by a software called Turnitin, just to avoid the duplication of information and to check the similarity. So every research scholar has to go through this channel. So what I am noticing here at Chaudhry Charan Singh University, Meerut, because we have been doing this work of checking the thesis submitted by the students in campus and affiliated colleges, they used to ask this question, sir, this is a problem that we are facing. Your software is not checking the languages other than English. ये बात सही थी, ये बात सत्य है, इसको मैं स्वीकार करता हूं कि जो टर्निटिन सॉफ्टवेयर है, जो दुनिया का सबसे पावरफुल सॉफ्टवेयर है प्लेगरिज्म चेक करने के लिए, उसके अंदर ये प्रॉब्लम है कि वो इंग्लिश लैंग्वेज को ही स्कैन करता है. उसका मुख्य कारण ये है कि इंग्लिश लैंग्वेज इज द यूनिवर्सल लैंग्वेज, नंबर 1. नंबर 2, नेट के ऊपर जितना भी रिसोर्सेज हैं, इंफॉर्मेशन है,
वो लगभग 81% जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज में है। अब सॉफ्टवेयर जो है वो केवल उसको सर्च करता है जो नेट पर अवेलेबल है, जो ग्लोबली अवेलेबल है। हम सॉफ्ट कॉपी को सॉफ्टवेयर में अपलोड करते हैं, वो स्कैन करता है। स्कैन किसको करता है? वॉट एवर इज अवेलेबल ऑन इंटरनेट। और इंटरनेट पर मैक्सिमम लिटरेचर जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज में है। रीजनल लैंग्वेजेस में बहुत कम लिटरेचर है। तो ये कारण है कि वो सॉफ्टवेयर उसको चेक नहीं कर पाता। लेकिन फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, इन नवंबर 2019 a new software has come up that has the ability to check all Indian regional languages. Good. तो वो भी हम अपनी यूनिवर्सिटी में इंस्टॉल कर रहे हैं और प्रक्रिया चल रही है। तो जो क्षेत्रीय भाषाओं में थीसिस होंगे, हमारे यहाँ आर्ट्स फैकल्टी और सोशल साइंस फैकल्टी में जो विषय आते हैं वो ज्यादातर हिंदी भाषा में लिखे होते हैं। और अन्य भाषाओं की बात, जैसे उर्दू भाषा, संस्कृत भाषा, वो देश की तकरीबन 32 रीजनल लैंग्वेजेस को भी चेक करेगा। and soon our university will be having this software, and then every thesis has to go through that particular software. Why I'm discussing over here? Because of the fact that reading is an aspect that relates to digital environment. जब हम डिजिटल रिसोर्सेज की बात करते हैं तो डिजिटल रिसोर्सेज के लिए हमें क्या सावधानी बरतनी होगी, उसके लिए भी हमें जागरूक होना पड़ेगा। और यहाँ पर पनिकर साहब का जो सपना था वो केवल यही था कि हम अपने युवाओं के अंदर रीडिंग कल्चर को डेवलप करें। रीडिंग से तात्पर्य उनका केवल पुस्तकों तक सीमित नहीं था, किसी भी फॉर्म में डॉक्यूमेंट हो वो यूथ पढ़े उसको, जिससे उसका विकास हो, समाज का विकास हो, देश का विकास हो। और यही काम सब कुछ करने के लिए उन्होंने जो फाउंडेशन की स्थापना की थी वो आज भी बहुत ही अग्रिम पंक्ति में खड़ी हुई है। और मुझे ये जानकर बताते हुए भी काफी खुशी महसूस हो रही है कि हमारी केंद्र सरकार जो है पेनिकर फाउंडेशन को हर साल 1 करोड़ से ज्यादा वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है। क्योंकि जो फाउंडेशन काम कर रहा है, जिस तरह से वो लाइब्रेरीज को इस्टेब्लिश कर रहा है, फाउंडेशन का मानना यह है कि हम जब शिक्षा की बात करते हैं, हम जब साक्षरता की बात करते हैं, साक्षरता लाने के लिए हमें शैक्षणिक संस्थान की आवश्यकता है, वो बात ठीक है। लेकिन खाली शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने से साक्षरता नहीं बढ़ेगी जब तक हम साथ में पुस्तकालय स्थापित ना करें। क्योंकि आपने देखा होगा कि शैक्षणिक संस्थान का समय सीमित होता है। सुबह 9 बजे से क्लास शुरू होती है, 2 बजे खत्म हो जाती है, 10 बजे से शुरू होती है, 3 बजे खत्म हो जाती है। लेकिन पुस्तकालय एक ऐसा स्थान है कि जो सबसे ज्यादा अधिक समय तक खुलने वाली संस्था है, और वहां बैठ करके बच्चा अपनी रीडिंग हैबिट्स को बढ़ा सकता है। और जब तक पुस्तकालय में बच्चा नहीं बैठेगा तब तक वो शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकता। शैक्षणिक संस्थान के लिए ये माना जाता है कि किसी भी शैक्षणिक संस्थान का हृदय जो है वो पुस्तकालय है। तो जब तक हृदय सही काम नहीं करेगा, शरीर आपका काम नहीं कर सकता सही रूप से। तो ये पेनिकर जी के विचार थे और उन्हीं विचारों को लेकर के संस्था काम कर रही है। आज हम 19 जून नेशनल रीडिंग डे के रूप में हम मना रहे हैं। मैं यहाँ ये जरूर आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, जो भी इस वेबिनार को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, संभवतः मैडम सोशियोलॉजी की डॉक्टर संतोष कुमारी जी शायद इसको हैंडल कर रही हैं। क्या मैडम आप मुझे शेयर ऑप्शन उपलब्ध कराएंगी, शेयर स्क्रीन?
जी सर कराएंगे आपको। सर आपको होस्ट बना देते हैं, तो जी फिर आप कहिए। शेयर स्क्रीन कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है ठीक है सर, अभी मैंने कर रहे हैं सर। जी। डॉक्टर सीमा, मैं यहाँ इसलिए शेयर स्क्रीन कराना चाहता हूँ कि क्योंकि कोविड-19 पैंडेमिक और लॉकडाउन की जो स्थिति चल रही है, सारे शैक्षणिक संस्थान बंद हैं, पुस्तकालय के द्वार बंद हैं, और हमारे जो विद्यार्थी हैं वो अपने अपने घरों पर, अपने अपने गांव में हैं। हमने ये ठीक है कि ऑनलाइन टीचिंग हम कर रहे हैं, हाँ जी। आपके महाविद्यालय में भी आपके शिक्षकगण ऑनलाइन टीचिंग, ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं। यहाँ विश्वविद्यालय परिसर में भी सभी शिक्षक ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं। मैं भी लाइब्रेरी साइंस की क्लासेस ले रहा हूँ। लेकिन वही फिर बात आती है पैनीकर साहब की कि जब तक पुस्तकालय साथ नहीं चलेगा तब तक ये ऑनलाइन टीचिंग, ऑनलाइन लेक्चर ये इतने कारगर सिद्ध नहीं होंगे। बच्चे को पढ़ने के लिए भी चाहिए। तो जो हमने लॉकडाउन प्रारंभ होने के समय ही हमने एक काम शुरू किया था, वो काम मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। आपने शेयर स्क्रीन ऑप्शन दे दिया मैडम? हाँ जी सर, सर आप कर सकते हैं स्क्रीन शेयर। ठीक है। डॉक्टर सीमा, मैं आपके तवज्जो चाहूंगा। हमने लॉकडाउन में एक डिजिटल लाइब्रेरी इस्टेब्लिश की, और डिजिटल लाइब्रेरी का केवल मकसद ये था कि जो लॉकडाउन के चलते हमारा पुस्तकालय बंद है और छात्र अपने अपने घरों पर हैं, हम ऑनलाइन लेक्चर तो दे रहे हैं, लेकिन बच्चे को नोट्स कहाँ से मिले, बच्चा तैयारी कैसे करे, परीक्षाएं बिल्कुल सिर पर हैं। तो बच्चों के सामने एक समस्या थी। तो उस समस्या को ध्यान में रखते हुए मैंने कुलपति जी से वार्ता की और मैंने उनसे एक प्रपोजल उनके समक्ष रखा कि सर, मैं ये चाहता हूं कि क्योंकि मैंने पुस्तकालय के द्वार बंद कर रखे हैं, मेरा पुस्तकालय छात्रों के द्वार पे पहुंच जाए। तो कुलपति जी ने कहा कि आप इस काम को कैसे करोगे? तो मैंने कहा सर, प्रयास करता हूं मैं कि किस तरह से कर सकते हैं। तो जो मैंने प्रयास किया वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, और आपसे ये अनुरोध करूंगा कि आप अपने महाविद्यालय के समस्त शिक्षकों को ये जरूर कहें कि वो एक बार इस ब्रिज लाइब्रेरी को जरूर देखें। चौधरी चंद सिंह विश्वविद्यालय की वेबसाइट जैसे ही आप खोलेंगे www.ccsuniversity.ac.in, उसमें टॉप राइट हैंड साइड पर ही आपको आइकन डिस्प्ले दिखाई देगा ब्रिज लाइब्रेरी के नाम से। उसको जब आप क्लिक करेंगे तो ये स्क्रीन सामने आएगी जो मैंने शेयर कर रखी है। ब्रिज लाइब्रेरी इज डेवलप्ड टू ब्रिज द गैप बिटवीन द टीचर्स एंड द स्टूडेंट्स ड्यूरिंग द प्रेजेंट सिचुएशन प्रिवेलिंग अराउंड द ग्लोब, and with the development of this bridge library, the teachers can interact with the students in terms of providing audio lectures, video lectures, PPTs related to prescribed syllabus. And this platform is developed for the students of this university and affiliated colleges during lockdown. उनको लॉकडाउन में परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। और डॉक्टर सीमा, ये केवल परिसर के छात्रों के लिए नहीं है, ये इस विश्वविद्यालय से संबद्ध जितने भी महाविद्यालय हैं, आप क्लिक करिए, ये स्क्रीन आएगी सामने, और इस पर क्या क्या है ये आपके सामने मैं शेयर करता हूं। यहां मैंने फैकल्टी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन किया है, आप स्क्रीन पर अगर देख रहे हो, फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन, फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, फैकल्टी ऑफ आर्ट्स, और हर फैकल्टी के अंदर जो विषय संचालित हैं विश्वविद्यालय द्वारा वो सब्जेक्ट दर्शा रखे हैं। आप किसी एक सब्जेक्ट को यदि क्लिक करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि कितने रिसोर्सेस हमने इस प्लेटफॉर्म पर अपलोड कर रखे हैं। तो मैं किसी एक सब्जेक्ट को आपके साथ शेयर करूंगा, जैसे केमिस्ट्री में लेता हूं या जो भी आप बताएं सब्जेक्ट।
कोई सब्जेक्ट आपका मैडम? हाँ, कोई भी ले लीजिए, आर्ट्स में से ले लीजिए कोई। इंग्लिश ले लेता हूं मैं। हाँ, इंग्लिश ले लीजिए, नहीं तो सोशियोलॉजी ले लीजिए, इकोनॉमिक्स ले लीजिए। सोशियोलॉजी, मैंने सोशियोलॉजी क्लिक किया है, नहीं। अभी खुलेगा पेज। सोशियोलॉजी एंड सोशल वर्क, यहाँ रिसर्च मेथोडोलॉजी, कंसेप्ट्स एंड थ्योरीज ऑफ सोशल चेंज, पॉलिटिकल सोशियोलॉजी। डेविड हार्डीमन की एक किताब है, बहुत फेमस किताब है सोशियोलॉजी की। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, लाइफ एंड मिशन, ये किताब है बहुत अच्छी। यानी मेरे कहने का मकसद ये है यहाँ पर कि हर विषय के अंदर इतने सारे रिसोर्सेस डिजिटल फॉर्म में हमने अपलोड कर रखे हैं। इसके अंदर रीडिंग मटेरियल है, इसके अंदर बुक्स हैं इंपॉर्टेंट विषय से संबंधित जो मैक्सिमम सिलेबस को कवर करती हैं बीए और एमए के, और इसके साथ साथ जो इंपॉर्टेंट रिसर्च पेपर है जो सब्जेक्ट से रिलेटेड है, जो बच्चों के लिए रेलिवेंट है, वो भी हमने डिजिटल फॉर्म में यहाँ अपलोड कर रखा है। इसके लिए किसी किस्म के लॉगिंग पासवर्ड की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट क्लिक करिए, पेज खुलेगा। 2 पेज हैं या 100 पेज हैं या 400 पेज की किताब है, वो पूरी आपकी स्क्रीन पर खुलेगी पीडीएफ में। आप उसको पढ़िए। पेनिकर साहब का सपना साकार करना होगा हमें कि उसको देखिए, आप ओपन करिए। आप चाहे प्रिंट आउट ले सकते हैं, आप चाहे डेस्कटॉप पर सेव कर सकते हैं, आप उसको पेन ड्राइव में ले सकते हैं और उसको अपने बच्चों के साथ शेयर कर सकते हैं। इतना ही नहीं, मेरा मानना यह है कि अब तो बहुत आसानी हो गई, टेक्नोलॉजी ने हमें इतना आसान बना दिया। हर क्लास के बच्चों का व्हाट्सएप ग्रुप बना लीजिए और ग्रुप में इसको शेयर कर दीजिए लिंक को। बच्चा अपने घर, अगर उसके पास कंप्यूटर भी नहीं है, मोबाइल तो होगा, एंड्रॉइड फोन होगा, वो फोन पर देख सकता है, पढ़ सकता है, प्रिंट आउट निकाल सकता है, सेव कर सकता है, व्हाटएवर। तो लॉकडाउन के पीरियड में हमने ये काम किया और इस काम के रिस्पॉन्सेस जो आए वो बहुत अच्छे आए। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स टीचर्स की तरफ से भी रहा और विद्यार्थियों की तरफ से भी रहा, क्योंकि उनको घर बैठे पढ़ने के लिए पाठ्य सामग्री हम उपलब्ध करा पाए। इतना ही नहीं, मैं और थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूं। मैडम आप देखिए स्क्रीन पर, यहां हमने ई बुक्स, ये ऑप्शन दिख रहा है येलो में। मैडम नीता भटनागर जी, आप लाइब्रेरी का काम देख रही हैं, आपका ध्यान मैं जरूर चाहता हूं इस ओर। ई बुक्स हमने यहाँ जनरेट कर रखा है, उसके सबसे नीचे आपने देखा पीडीएफ बुक्स। पीडीएफ बुक्स को जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपको पढ़ने के लिए 30 लाख किताबें अवेलेबल होंगी। कैन यू बिलीव? I request Mrs. Neeta Bhatnagar to please note all these things, and I am sure that you will bring to the notice of the library members how to get access to these freely available resources. I must say freely available resources. Yes, yes, yes. आपके पुस्तकालय में मैं समझता हूँ 1 लाख से ज्यादा पुस्तकें नहीं होंगी। बिल्कुल बिल्कुल सर मैं थोड़ा सा बोलना चाहती हूँ, बीच में इंक्लूड करना चाहती हूँ। प्लीज सिद्दीकी सर, हम आपके साथ कोलैबोरेशन करना चाहते हैं, कोलैबोरेट करना चाहते हैं, और जो आप कह रहे हैं कि खुल ही जाएगा वैसे तो, पर हम इसका आपके साथ कोलैबोरेशन चाहेंगे कि जिससे कि हमारे यहाँ के बच्चे भी इसको आसानी से इसको एक्सेस कर सकें। मैं इसमें आपको ये सुझाव दूंगा, थोड़ी सा ये माहौल थोड़ा सा और अच्छा हो जाए और ये लॉकडाउन का पीरियड थोड़ा सा समाप्त हो, ये महामारी थोड़ी सी कम हो, तो मैं फिजिकली आपके महाविद्यालय आकर के एक यूजर अवेयरनेस प्रोग्राम, ठीक है, बिल्कुल, फॉर फैकल्टी एंड रिसर्च स्कॉलर्स, बिल्कुल सर, एक हो जाएगा, जिससे मैं एक एक चीज को, क्योंकि यहाँ थोड़ा समय की समस्या है, मुझे एक्चुअली एक और वेबिनार में अभी जुड़ना है,
लेकिन मैं यहाँ फिर भी इतना कुछ बता दूं कि जो आपकी लाइब्रेरियन मैडम है, भटनागर मैडम, वो ये सब देख करके कम से कम महाविद्यालय की शिक्षकों को और विद्यार्थियों को ये मैसेज कन्वे कर दें। इसमें कुछ करना नहीं है, मैडम को कुछ नहीं करना, मैडम को केवल बच्चों को बताना है हाउ टू गेट एक्सेस। करने का काम तो हो चुका, आई हैव ऑलरेडी डन। ई बुक्स के नीचे पीडीएफ बुक्स को जैसे ही आप क्लिक करेंगे, यू विल फाइंड 30 मिलियन ई बुक्स, फुल टेक्स्ट, फुल टेक्स्ट। उसके नीचे एक और हमने प्रोजेक्ट गुटेनबर्ग का लिंक दे रखा है। इस प्रोजेक्ट गुटेनबर्ग में 65,000 बुक्स हैं। उसके नीचे हमने डॉब का लिंक दे रखा है, डायरेक्टरी ऑफ ओपन एक्सेस बुक्स, ये फ्रीली अवेलेबल हैं। हाथी ट्रस्ट का हमने लिंक प्रोवाइड कराया। मैंने कोई बहुत ज्यादा काम नहीं किया, मैंने काम डॉक्टर सीमा सिर्फ ये किया कि जो कुछ लिटरेचर स्कैटर्ड था नेट पर, उसको इकट्ठा करके लिंक बना करके ये लिंक दे दिया। बहुत अच्छा। यू जस्ट हैव टू क्लिक एंड यू विल फाइंड द रिजल्ट। नहीं सर, यू हैव डन ए ट्रिमेंडस जॉब और बहुत ही प्रेजवर्दी है सर, ये तो बहुत ही अच्छा काम है। मैं तो खुद सोच रही थी कि हम लोग कैसे अपने लाइब्रेरी को एनरिच करें, तो मुझे लगता है दिस इज द बेस्ट सिस्टम कि हम अपना स्क्रीन्स लगा लें और आराम से इसको एक्सेस करें। और जैसे मैंने आपको बताया कि रीडिंग का मकसद है, पेनिकर साहब का सपना केवल और केवल रीडिंग कल्चर को बढ़ाने का था। उन्हीं के सपनों को साकार करते हुए ये डिजिटल रिसोर्सेस हमने डेवलप किए, ताकि वर्तमान समय में जो स्थिति व्याप्त है हमारे देश में, छात्र अपने घर रहते हुए ये तमाम रिसोर्सेस, अब मैं अपने पुस्तकालय की बात करूं यदि, तो 1.5 लाख पुस्तकें हैं केवल, और हमने 30 लाख पुस्तकें बच्चे के द्वार पे पहुंचा दी। मैं केवल पुस्तकों की बात नहीं कर रहा, आप नीचे देखेंगे ई जर्नल्स। अगर कोई रिसर्च पेपर लिखने वाला है या आपके यहाँ शिक्षक लेक्चर तैयार करना है किसी को, तो वो what is happening around the globe in their respective subject, they can access a number of journals. Open Journal Access System, popularly known as OJAS. You will find thousands of journals freely available, freely accessible. और एक चीज और मैं आपको यहां शेयर करना चाहूंगा, EPG पाठशाला, ये इन्फ्लिपनेट सेंटर अहमदाबाद में जो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने स्थापित किया है, उसका एक पोर्टल है, ये मैंने क्लिक किया, EPG पाठशाला। EPG पाठशाला के अंदर जितने भी हमारे विश्वविद्यालय के पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स हैं, वो तमाम पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स जो विश्वविद्यालय संचालित कर रहा है, आपको मैं यहाँ स्क्रीन पर दिखाता हूं। देखिए ये सारे विषय आपके सामने आ गए मैडम। मैंने सिर्फ एक लिंक को क्लिक किया है, EPG पाठशाला, राइट। डॉक्टर सीमा, आपका विषय क्या है? मेरा विषय इंग्लिश है। वो तो मुझे मालूम है। थर्स्ट एरिया क्या है आपका? पोएट्री। पोएट्री। मैं यहाँ इंग्लिश को ढूंढता हूँ। 560 नंबर है। रिसोर्सेज मिल गए? वो नंबर नहीं है मैडम, रिसोर्सेज है। रिसोर्सेज हैं, यस। मैंने इंग्लिश को क्लिक किया, एक नया वेब पेज खुलेगा। पेपर आप कौन सा पढ़ाते हैं? आप सर्च कर लीजिए इसमें से। अमेरिकन लिटरेचर इसमें दिखाई दे रहा है आपको? यस। मेडिकल लिटरेचर, अमेरिकन लिटरेचर, वेयर इट इज? P05, yes. अमेरिकन लिटरेचर। यहाँ सेकंड ऑप्शन है मॉड्यूल। कौन सा पढ़ना चाहेंगे आप? Yes, I know this. I have been to various NAC committees, so I have seen in number of colleges this kind of thing.
And Yeah. but I'm really delighted to see that our CCS University is having all this. So So this is really good. This is what- really great. what I'm trying to tell the librarian madam Neeta Bhatnagar, she has to play her role to bridge the gap between the teachers and the students. And the She students. has to bridge the gap between the library and the students. So we have done a lot during this lockdown period just to satisfy the varied demands of our users. Now it depends on the librarian, how he or she taking pains to understand the problems of our users. सर आप इसको कंप्लीट दिखा दीजिए एक बार सब्जेक्ट खोल के ना, जिससे कि इनको पता चल जाएगा. मैं कोई सा भी एक इसमें से शॉर्ट पोएम्स शॉर्ट पोएम्स. हाँ. मैंने ले लिया, ये सेलेक्ट हो गया, ये ऑटोमेटिकली नीचे पीडीएफ खुल के आ गया. आप देख सकते हैं सब यहाँ पर. ये पीडीएफ फॉर्म में आप इन सारे चीजों को, रिसोर्सेज को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, प्रिंट आउट ले सकते हैं, सेव कर सकते हैं, बच्चों के साथ शेयर कर सकते हैं. I would like to suggest you some very important points, Mrs. Bhatnagar. Please listen. आप ध्यान से सुनिए. What you have to do. सबसे पहले आप अपने महाविद्यालय के समस्त शिक्षकों के नाम आपके पास होने चाहिए. हर शिक्षक की ईमेल आईडी आपके पास होनी चाहिए. हर शिक्षक का सब्जेक्ट नहीं बल्कि उसका थ्रस्ट एरिया आपके पास होना चाहिए और व्हाट्सएप नंबर आपके पास होना चाहिए. ये जो कुछ मैं दिखा रहा हूं आप रोज देखिए इनको. जो भी नया रिसर्च पेपर प्रकाशित हो अमेरिकन लिटरेचर पर, आप उसका स्क्रीनशॉट लीजिए और मैडम के व्हाट्सएप पे शेयर कर दीजिए. इस काम को करने में 1 मिनट का समय लगता है, 59 सेकंड लगते हैं. कि आपने देखा कि एक जर्नल जो फ्रीली मैंने आपको बताए हैं, उसमें नया कोई जर्नल आया, कोई नया इशू आया, आपने उसको खोला, उसमें एक आर्टिकल मैडम के थ्रस्ट एरिया से मैच करता है. आपने स्क्रीनशॉट लिया और मैडम के व्हाट्सएप पे उसको शेयर कर दिया. आप मुझ पर यकीन करिए, विश्वास करिए, शिक्षक की बात छोड़िए. आपके प्रिंसिपल डॉक्टर सीमा जैन अगले दिन सुबह लाइब्रेरी आएंगी और कहेंगी नीता भटनागर जी थैंक यू वेरी मच. इज्जत करना मैडम बहुत आसान काम है, इज्जत करवाना सबसे मुश्किल काम है. खाली किसी को नमस्ते करने से कुछ नहीं होता. आप उनके प्रति कितने चिंतित हैं, आप उनकी समस्या को कितना गंभीरता से ले रहे हैं, आप उनकी परेशानी में कितने भागीदार हैं, उनकी समस्याओं का आप किस तरह से समाधान निकालते हैं. यदि ये प्रैक्टिस आप अपने अंदर, आप बहुत ज्ञानी हैं, अनुभवी हैं, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन ये कुछ टिप्स हैं, यदि आप करेंगी तो आप देखिए कि क्या बदलाव आएगा. और मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप इस योग्य हैं कि आप इस काम को कुशलता पूर्वक कर सकती हैं. तो यहां समय वर्तमान जो है, देखिए कोविड-19 पेंडेमिक ने हमें बहुत सारे लेसन दिए हैं, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता. मैं डॉक्टर सीमा एक आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूं. अभी 4 साल पहले मैंने एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किया अपने डिपार्टमेंट में, और दैट वर्कशॉप वाज स्पेसिफिकली मेंट फॉर कॉलेज लाइब्रेरियंस. और उस वर्कशॉप में मैंने इस विश्वविद्यालय से संबद्ध समस्त महाविद्यालय के
लाइब्रेरियंस को निमंत्रण पत्र भेजा। वर्कशॉप की कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं थी। वर्कशॉप में फुल रिफ्रेशमेंट था। वर्कशॉप में 2 घंटे की ट्रेनिंग थी। वर्कशॉप का सर्टिफिकेट था। एवरीथिंग फ्री ऑफ कॉस्ट। मैंने लगभग 127 कॉलेज लाइब्रेरियंस को चिट्ठी भेजी, मेल किया, व्हाट्सएप किया। ये मैं 4 वर्ष पूर्व की बात कर रहा हूं। Only 17 librarians turned up. My God. In spite of the fact that registration was free, refreshment was there. बहुत छोटी सी बात कर रहा हूं मैं। Certificate was there, and the person was there who was ready to train the librarians. उस वक्त नहीं किसी ने मानी बात। कोविड-19 पेंडेमिक ने सारे लाइब्रेरियन को मजबूर कर दिया कि भाई वो 4 साल पहले जो बात कही गई थी उसको अब मानो। अब सारे लाइब्रेरियंस मंथन कर रहे हैं कि किस प्रकार हम अपने पुस्तकालय की पाठ्य सामग्री को पाठकों तक पहुंचाएं। So this is high time when we have to take it very seriously how to provide the access to the resources available in our library to our beloved users. बातें बहुत हैं मुझे करने को, लेकिन समय की मजबूरी है और मैडम मुझे दूसरे वेबिनार से जोड़ना है अभी 1 बजे। उसके बारे में तो मैंने अभी देखा भी नहीं, पढ़ा भी नहीं कि मुझे बोलना क्या है। वहाँ मुझे जोड़ना है। मैं यहाँ अपनी वाणी को विराम देते हुए और इस बात के साथ आपसे विदाई लेना चाहूँगा। I wish all the participants of this web Goshti a fruitful season of reading and request you to make every day our reading day. Thank you very much for providing me this opportunity to share my experience with librarians and faculty members of your college. And I really appreciate the effort of Dr. Seema Jain for organizing and for remembering the lover of libraries, P.N. Panikar Sahab. Thank you very much. Well, आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है मैम। Okay. Sir, how I should say thank you to you. You have so minutiae you have given us so beautiful details of library network. We, you know, when I was in RG sir, so I took Infilbnet first, and then I automated the complete library. Then I connected the library to Delnet. So all the mediums we tried there. So here also we are looking forward to connect to, you know, these mediums so that we can. मैं आपको रोक दूं मैडम, एक सेकंड के लिए रोक दूं? अब तो हमें जरूरत नहीं है, अब तो हम now. Mrs. Sarla Verma has told me everything what you did for the development of RG College Library. थैंक यू सो मच सर। सर अब हम चाहते हैं कि अब हमारा जो जैन गर्ल्स की जो लाइब्रेरी है उसको भी हम अब कनेक्ट करेंगे आपकी लाइब्रेरी से, तो फिर हमें फिर इतनी ज्यादा बुक्स लेने की मुझे लगता है इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी और हमारी गर्ल्स को वो अवेलेबल होंगी, कोई जरूरत नहीं है। हाँ सर, और एक आपने बहुत अच्छा बताया, वी वुड लाइक टू हैव वन प्रोग्राम ऑफ योर्स इन अवर कॉलेज व्हेन दिस पेंडेमिक ओवर्स गेट्स ओवर, क्योंकि अभी तो कुछ पता ही नहीं है, देयर इज सो अनसर्टेनिटी अबाउट इट कि क्या होगा कैसे होगा, nobody knows. So but we hope for the best कि जल्दी से ये एंड हो जाए सर, और भी हम पर्सनली मिले, फिजिकली हमारा इंटरेक्शन हो, नॉट डिजिटली। दो डिजिटल मीडियम हैज कम अप इन ए वेरी नाइस वे कि हम ऐसे घर बैठ के हम लोग आराम से सुन रहे हैं दूर दूर से लोगों को, क्योंकि लोगों को बुलाना और उनका जो TADA वहन करना भी पड़ता है कॉलेज को, तो उस सबसे भी बच जाते हैं। तो एक ये इसका एक बेनिफिट हमें लगता है। और इसके साथ साथ ही मैं चाहती हूँ कि मैं यही कहना चाहती हूँ कि आपने बहुत अच्छे शब्दों में बताया कि रीडिंग जो है इट्स ए पार्ट ऑफ अवर लाइफ, इट्स ए लर्निंग प्रोसेस, इट्स ए पार्ट ऑफ अवर लाइफ। नो डे गोज कि हम सुबह उठ के पेपर ना पढ़ें या कुछ भी ना पढ़ें, ऐसा हम लोग तो बिल्कुल ही नहीं, हमारे लिए तो संभव ही नहीं है। पर हम चाहते हैं कि हमारे से कनेक्टेड जितने भी स्टूडेंट्स हैं
दे ऑल्सो कम अप विद दिस काइंड ऑफ हैबिट। और रात को यदि नींद नहीं आ रही है तो आप एक नॉवल आप ले लीजिए, कोई भी नॉवल जो आपका, मैक्सिम गोर्की का ले लें, कोई भी ले लें, मतलब कोई भी नॉवल जो आपको अच्छा लगे उसे लें, उसे पढ़ने की आदत डालें, चाहे 2 पेज ही पढ़ें चाहे 3 पेज पढ़ें, पर पढ़कर सोएं। तो देखिए यू विल फील क्वाइट रिलैक्स्ड। थोड़ा म्यूजिक सुनना और थोड़ा पढ़ना, ये तो 2 चीजें जो है मुझे लगता है कि जीवन में यही अच्छी चीजें हैं 2। अदरवाइज बहुत लाइफ बहुत ही मंडेन है और बहुत डिफिकल्ट भी है, बहुत टेंशन्स भी हैं सर। तो आई थिंक रीडिंग गिव्स यू a lot of relief in a way। और ये दिस इज अ फूड फॉर माइंड, इट इज अ फूड फॉर माइंड। एंड लाइब्रेरी के लिए क्या कहूँ सर, दिस इज अ सोल ऑफ कॉलेज। सोल ऑफ कॉलेज, कॉलेज तो कुछ भी नहीं है, इट जस्ट ए सॉइल, मिट्टी है सर, या मिट्टी का शरीर है ये बिना आत्मा के। तो लाइब्रेरी इज द सोल ऑफ द कॉलेज, एंड आई थिंक दैट टू एनरिच लाइब्रेरी शुड बी अवर सोल एफर्ट। और इन नियर फ्यूचर वी वुड लाइक टू एनरिच अवर लाइब्रेरी विद योर कोऑपरेशन सर। और सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपके प्रेशियस टाइम के लिए। आपको दूसरा वेबिनार भी ज्वाइन करना है, और अब मैं नीता भटनागर जी से कहती हूँ कि वो प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। हेलो, आदरणीय डॉक्टर जमील अहमद सिद्दीकी जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी, इन्होंने इतनी अच्छी जानकारी दी। और उसके प्रांत में श्रीमती पुष्पा शर्मा, रिटायर्ड लाइब्रेरियन, DAV PG कॉलेज मुजफ्फरनगर को बुलाना चाहूंगी। आपने कॉलेज में 25 वर्ष तक लाइब्रेरियन के पद पर कुशलता पूर्वक कार्य किया, और कॉलेज में आपने अपने समय में C.Lib और B.Lib की कोर्सेज भी शुरू किए गए थे। मैं एक चीज और कहना चाहती हूँ, सिद्दीकी सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ लाइब्रेरी साइंस का कोर्स सर की वजह से शुरू हुआ। एकदम फोन किया, एकदम उन्होंने एकदम एब्रिप्टली इन्होंने एकदम कहा कि ठीक है आप लीजिए। और सर वी आर वेरी थैंकफुल टू यू फॉर दिस, वी आर इंडेटेड टू यू फॉर इंट्रोड्यूसिंग लाइब्रेरी साइंस इन अ कॉलेज। और बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। और नीता भटनागर इज टेकिंग गुड केयर ऑफ दैट प्रोग्राम। अच्छा हमारा पूरा सेक्शन हो गया है, पूरा सेक्शन हो गया है उसमें। अब नाउ दिस इज द सेकंड ईयर। तो अब जो भी हमें कोई मदद की जरूरत होगी तो सर हम आपसे कहेंगे। मैंने एक बार आपको एक लिस्ट ऑफ बुक्स के नाम भी भेजे थे सर, जी जी, कि हमें वो चाहिए थी लाइब्रेरी साइंस के लिए। तो सर जी, जी। आगे भी आपको हम परेशान करते रहेंगे। यू आर ऑलवेज वेलकम मैडम। तो थैंक यू वेरी मच सर फॉर बीइंग विद अस इन टुडेज वेब गोष्ठी। थैंक यू। और नीता भटनागर जी 5 मिनट का ब्रेक लेना चाहेंगे, फिर उसके बाद आप शुरू कीजिएगा। अच्छा जी, ठीक है। हेलो। हेलो। हाँ जी दीदी, आवाज आ रही है आपको? यस मैम। हाँ आ रही। पुष्पा मैम, आप अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए। ऐसे कर लो तो हो गया मैम, हो गया। आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है। नीता जी आपको आवाज आ रही है? आ रही है हाँ, आ रही है। मैम, आ रही है, आ रही है। अभी मैडम आ जाए बस। ठीक है ठीक है। नहीं मैंने पूछा कि वो अनम्यूट किया तो आवाज आई कि नहीं आई? हाँ जी। नहीं आ रही है।
डॉक्टर विप्लव ईरा की बता रही होगी। नीता मैम अब शुरू करा दीजिए। हाँ, शुरू कराइए। बोलूं? अब मैं श्रीमती पुष्पा शर्मा जी, रिटायर्ड लाइब्रेरियन, डीएवी पीजी कॉलेज मुजफ्फरनगर को बुलाना चाहूंगी। आपने कॉलेज में कुशलता पूर्वक कार्य किया। आपके समय में ही कॉलेज में लाइब्रेरी साइंस के सीलिब और बीलिब कोर्सेज की भी शुरुआत हुई थी। मैडम आ जाइए। करूं? यस, आगे मैडम। सबसे पहले मैम पुष्पा मैम आपको आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है। मैम आप मैं शुरू कीजिए। ओके, थैंक यू नीता जी, थैंक यू संतोष जी। मैं प्राचार्य जैन कन्या महाविद्यालय श्रीमती डॉक्टर सीमा जैन जी, मेरठ विश्वविद्यालय पुस्तकालय डॉक्टर जे सिद्धि जी, जैन कन्या महाविद्यालय की एसोसिएट प्रोफेसर श्रीमती गुप्ता जी, जैन कन्या महाविद्यालय की एसोसिएट प्रोफेसर श्रीमती संतोष जी, मैं आप सबको यथा योग्य अभिवादन करती हूँ। आवाज संतोष, डॉक्टर संतोष। हाँ जी मैम, वहीं पर नेटवर्क की दिक्कत होगी शायद, आवाज नहीं आ रही है मैडम। हाँ, पुष्पा जी की आवाज नहीं आ रही है। मैम पुष्पा मैम आपको आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है, अब आ रही है, मैं बोलती हूँ। हाँ जी मैम। सॉरी, थोड़ा डिस्टरबेंस हुआ, उसके लिए माफी चाहती हूँ। ठीक है मैम। मैं प्राचार्य जैन कन्या महाविद्यालय डॉक्टर सीमा जी, मेरठ विश्वविद्यालय पुस्तकालय अध्यक्ष डॉक्टर जे के सिद्दीकी जी, जैन कन्या महाविद्यालय एसोसिएट प्रोफेसर श्रीमती नीता भटनागर जी, जैन कन्या महाविद्यालय की एसोसिएट प्रोफेसर श्रीमती संतोष जी, और जूम पर उपस्थित मेरे सभी साथियों का मैं यथा योग्य अभिवादन करती हूँ। मुझे हर्ष है कि आपने मुझे इस समय राष्ट्रीय अध्ययन दिवस के रूप में मुझे बुलाने में सम्मिलित करने के लिए मुझे याद किया है। मैं आप सब लोगों का धन्यवाद करती हूँ और बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। मैं कहना चाहती हूँ कि श्री पनिकर जी, जे.के. पनिकर जी, जो हमारे लाइब्रेरी, केरल लाइब्रेरी मूवमेंट के जनक के रूप में जाने जाते हैं, उनको लाइब्रेरी जनक के रूप में जाने जाते हैं, उनको ऐसे महान व्यक्तित्व बिरले समाज में होते हैं। उनको शत नमन करते हुए मैं सर्वप्रथम उनको श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। फिर मैं कहना चाहती हूँ कि स्टेट लाइब्रेरी काउंसिल के माध्यम से उन्होंने केरल में जो आंदोलन किया और जो सफलता प्राप्त की है, उसी का श्रेय है कि 1990 में केरल राज्य भारत का पूर्ण साक्षर राज्य के रूप में उभर कर सामने आया है। श्री पनिकर जी का जन्म 1 मार्च 1909 में हुआ था। पुट्टुयार्ड में इनका जन्म हुआ था केरल के। उस समय इनकी औपचारिक शिक्षा बहुत अधिक नहीं हुई थी, क्योंकि ये शुरू से ही युवावस्था से ही इन्हें पढ़ने पढ़ाने का बहुत शौक था। पत्र पत्रिकाएं और पुस्तकें बहुत पढ़ा करते थे, और केवल पढ़ते ही नहीं थे बल्कि ये निरक्षर समूहों में जाकर, जो केरल के जो जनजातीय समूह होते थे, उनको जाकर के पत्र और पत्रिकाएं ये पढ़ाया करते थे। इन्होंने महान अध्ययन कार्य किया है। ये सबसे बड़ा काम करते थे कि ये शिक्षा स्वयं लेते थे और स्वयं शिक्षा दूसरों को दिया करते थे। 1926 में इन्होंने अपने पैतृक स्थान पर एक सनातन धर्म महाविद्यालय, सनातन धर्म महापुस्तकालय की स्थापना की, जिसके बाद इन्होंने 47 ग्रामीण पुस्तकालयों के साथ मिलकर एक सम्मेलन का आयोजन किया। उस सम्मेलन का उद्घाटन ये उस समय के तत्कालीन दीवान से कराना चाहते थे, लेकिन जो दीवान थे वो उस समय विवादित थे और उनको
वहाँ के जनता, केरल की जनता उनको पसंद नहीं करती थी, क्योंकि वो आंदोलनों को दबाने के लिए जाने जाते थे। सो पनिकर जी ने अपनी टीम के साथ जाकर उनको इस आंदोलन के लिए मनाया और उनको उसका उद्घाटन उनके द्वारा कराया। इस उद्घाटन का परिणाम ये हुआ कि उनको पुस्तकालय संघ की स्थापना करने की परमिशन मिल गई। तब इन्होंने 1947 में और 1956 तक जाते जाते 6000 से अधिक पुस्तकालयों का गठन कर लिया और सफलतापूर्वक उनका ऑर्गेनाइजेशन करते रहे। उससे पहले वहाँ के पुस्तकालय जो थे वो किसी प्रशासनिक अधिकारी के देखरेख में चला करते थे, लेकिन इस गठन के बाद, स्टेट लाइब्रेरी काउंसिल के गठन के बाद, पनिकर जी ने एक लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए सचिव के रूप में इन्होंने 33 वर्षों तक वहां पर कार्य किया। 33 वर्ष कार्य करने के पश्चात 1972 में जब ये अपनी रजत जयंती मना रहे थे, तो उस समय इन्होंने एक केरल से लेके कन्याकुमारी तक एक पदयात्रा का आयोजन किया, जिसमें इन्होंने पदयात्रा के आयोजन में इन्होंने एक समूह को एकत्र, इनका असली उद्देश्य यही था कि वो एक समूह को एक विषय के रूप में एकत्रित करना चाहते थे। यह केरल के इतिहास में सामाजिक और राजनीतिक, सामाजिक आंदोलन था और सामाजिक और सांस्कृतिक आंदोलन था, जिसका बहुत अधिक महत्व था। 33 वर्षों की सेवा के उपरांत फिर इन्होंने 1972 में ये अपनी स्वर्ण जयंती मनाई और इस पदयात्रा का आयोजन किया। इसका परिणाम ये हुआ कि वहां पर इनको पुस्तकालय के रूप में प्रचार प्रसार और इसकी सारी मान्यता मिल गई, लेकिन ये उससे संतुष्ट नहीं हुए और ये चाहते थे कि अपने सांस्कृतिक और सामाजिक जो पुस्तकालय इन्होंने स्थापित किए हैं वो उनको वाचनालय के रूप में प्रसारित और प्रगति उनकी करना चाहते थे। वो चाहते थे कि इनके सबके वाचनालय खुले, जिससे प्रत्येक प्राणी को, प्रत्येक अशिक्षित व्यक्ति को उनमें पढ़ने का अवसर प्राप्त हो। ऐसे इन्होंने गांव-गांव में जाकर के चल पुस्तकालयों का आयोजन किया। गांव-गांव, ग्रामीणों में जाके, ग्रामीण अंचल में जाके इन्होंने पब्लिक लाइब्रेरीज को खोला, जिससे हमारे समाज को इनकी उपयोगिता लगी कि अध्ययन की उपयोगिता क्या होती है। फिर इन्होंने अपने अंतिम समय में और 1990 में इन्होंने इनको एक परिकल्पना, इनकी जो 33 वर्षों के बाद इन्होंने एक संस्था का गठन किया जो थी नॉन फॉर्मल एजुकेशन के FT के नाम से जानी जाती थी, KANFED के नाम से जानी जाती थी। इन्होंने फॉर्मल एजुकेशन एंड डेवलपमेंट फाउंडेशन का निर्माण किया। इन दोनों को, इनके सहयोग से इन्होंने इस आंदोलन को गति प्रदान की और इसके पश्चात भारत सरकार ने इनको, इससे प्रभावित होकर इनको राज्य के संसाधन के कार्य को पनिकर जी को सौंप दिया गया। तो पनिकर जी ने उसको फिर कार्य को संभालते हुए भारत सरकार और केरल सरकार से निवेदन किया कि यदि उनको सरकारी मदद मिले तो वो राज्य के लिए, शिक्षा के लिए कुछ कर सकते हैं। तत्पश्चात उन्होंने, केरल सरकार ने उनकी मदद करते हुए एक अक्षर कलम नाम की एक परियोजना की परिकल्पना की गई। उस परियोजना का परिणाम ये हुआ कि केरल राज्य सन 1990 में एक संपूर्ण शिक्षित राज्य के रूप में उभर कर सामने आया, जो भारत का पहला राज्य था जो पूरी संपूर्ण साक्षर, जहाँ पर 100% साक्षर लोग रहते थे। फिर इन्होंने एक ग्राम सौहार्द नाम की 72 के बाद अपने अंतिम समय में इन्होंने ग्राम सौहार्द नाम के एक फ्रेंडशिप विलेज मूवमेंट के नाम से एक संस्था का संचालन किया और अपने अंतिम समय तक उसके लिए कार्य करते रहे। इनको समाज में होती हुई फिजूल खर्ची भी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी पनिकर जी को, तो उन्होंने अपने दैनिक खर्चों से पैसा काट करके उसको बचा के और वो उस फ्रेंडशिप फाउंडेशन को लगातार देते रहे। और इन्होंने तब तक काम किया जब तक कि 19 जून और 1995 में इन्होंने अपना देहावसान उनका नहीं हो गया। तब तक वो लगातार कार्य करते रहे। इसके बाद इनको सोवियत संघ के लेनिन की पत्नी की याद में एक कृष्ण काया नाम के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और उसके पश्चात भारत सरकार ने भी उसको, जब केरल राज्य स्वतंत्र हो गया तो भारत सरकार ने इनके विचारों को आगे रखते हुए एक अभियान को प्रारंभ किया, जिसको हम पूर्ण साक्षरता अभियान के नाम से जानते हैं। तो ये श्री पनिकर जी का योगदान भारत सरकार के लिए भी है और केरल सरकार के लिए भी है। फिर भारत सरकार ने इनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए इनकी स्मृति में एक डाक टिकट जारी किया।
और केरल सरकार प्रतिवर्ष इनकी याद में पूरा सप्ताह अध्ययन दिवस के रूप में मनाती है। वो उसमें सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक गतिविधियों से जुड़े हुए प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक विद्यार्थी को, प्रत्येक मनुष्य को उससे जोड़ना चाहती है और उन सबको जोड़कर विभिन्न प्रकार की क्रीड़ाएं, खेल कूद प्रतियोगिता, पठन पाठन सब कुछ करती है। उसका प्रभाव ये होता है कि बच्चों के जो मन पर, मस्तिष्क पर प्रभाव होता है, बाल मन में जो संस्कार हम डाल देते हैं वो सदैव अंकित रहते हैं। इसलिए ये विशेष रूप से बच्चों के बीच में इसको मनाते हैं। इसके बाद फिर इससे प्रभावित होकर के डॉक्टर हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी इसको राष्ट्रीय दिवस के रूप में आयोजित करने का प्रण लिया है और ये 1917 में केरल गए थे इनकी 22वीं पुण्यतिथि पर। वहां जाने के उपरांत इन्होंने ये प्रण लिया था कि मिशन 2022 तक ये भारत को शिक्षित करने का कार्य करेंगे। तो मेरा मानना है कि श्री पनिकर जी ने लाइब्रेरी साइंस के, पुस्तकालय विज्ञान के जो हमारे जनक हुए हैं डॉक्टर श्याली रामामृत रंगनाथन जी, उन्होंने हमें 5 सिद्धांत दिए थे। उनका पहला सिद्धांत था कि पुस्तकें उपयोग के लिए हैं। दूसरा, प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले। तीसरा था प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले। और चौथा था पाठक का समय बचाओ। और उनका 5वां सिद्धांत था कि पुस्तकालय एक संवर्धनशील संस्था है। तो पनिकर जी ने इन 5 सिद्धांतों को आगे बढ़ाने के लिए संपूर्ण कार्य किया है। पहले सिद्धांत के रूप में इन्होंने प्रत्येक पाठक को पढ़ाने का कार्य किया, निरक्षर व्यक्ति को अक्षर प्रदान करने का कार्य किया, साक्षर बनाने का कार्य किया है। और दूसरे सिद्धांत में प्रत्येक के पास पठन सामग्री को लेकर गए हैं। तीसरे सिद्धांत में भी प्रत्येक पुस्तक को पाठक ढूंढकर उन्होंने दिया है और उस विचार से उन्होंने अध्ययन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया है। तदुपरांत उन्होंने चौथे उसके लिए कि पाठक का समय बचाओ, पाठक का समय पुस्तकालय तक आने में बर्बाद ना हो, इसलिए उन्होंने उनके जाकर गांव अंचलों में जाकर के जनजातीय समूहों के बीच में जा करके उनको पुस्तकें पढ़ी, सुनाई और उनको नॉलेज का, उनके सामने नॉलेज का विस्तार किया। तो ये सब कार्य करते हुए श्री पनिकर जी ने अध्ययनशीलता को बढ़ावा दिया और मैं ये मानती हूँ कि पनिकर जी की इस प्रयास को भारत सरकार भी अपना रही है। तो हम सबका कर्तव्य हो जाता है कि हम सब इसको बहुत अच्छे से आगे बढ़ाएं। और मेरा ये मानना है कि हम सब लोग शिक्षित समाज के लोग हैं, तो हमें इसमें बहुत ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं केवल इतना कहना चाहती हूँ कि हम लोगों में से प्रत्येक के संपर्क में आने वाले कम से कम 10 ऐसे लोगों को हम शिक्षित करें जो अशिक्षित हैं, जो पढ़ना लिखना नहीं जानते। हमारे घर में जो सर्वेंट्स आते हैं या जो कोई भी आते हैं और वो अशिक्षित हैं, तो हमारा कर्तव्य बन जाता है कि हम उनको पूरी तरह से शिक्षा प्रदान करें। यदि हम ऐसा कर पाते हैं तो समाज के लिए हमारा बहुत बड़ा योगदान होगा और समाज में हम इस जागृति को, जो हमारी अध्ययन की जागृति है, इसको फैला सकते हैं। डॉक्टर सिद्दीकी जी ने अभी जिक्र किया कि हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा इस प्रोग्राम को आगे बढ़ा सकते हैं। मैं मानती हूँ कि ये हर्ष का विषय है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आज बहुत उन्नति कर रहा है और हम लोगों ने भी इस पे काम किया है और कर भी रहे हैं, लेकिन जो हमारी अशिक्षित जनता है वो इस पर कार्य नहीं कर सकती। अशिक्षित जनता को तो हमें पढ़ के सुनाना ही पड़ेगा या हमें उन पुस्तकों के बारे में बताना ही पड़ेगा। उनको तो ज्ञान हमें देना ही पड़ेगा, तो वो सीख पाएंगे। तो जो अभी ABCD भी नहीं जानते, जो क ख ग भी नहीं जानते, उनको पढ़ाने का कार्य अगर हम करते हैं तो भारत राज्य भी केरल राज्य की तरह पूर्णतः शिक्षित हो सकता है। लेकिन ये सब प्रयास हम सब लोगों को मिलकर करना होगा। तो मेरा ये मानना है कि हमारे संपूर्ण प्रयास शिक्षा की जागरूकता, शिक्षा के बढ़ावा, शिक्षा के विस्तार, अध्ययन पठन के लिए होने चाहिए। जैसे डॉक्टर सीमा जी ने कहा कि हम पेपर ना पढ़ें तो हमें तसल्ली नहीं होती है, हम मैगजीन ना पढ़ें तो हमें अच्छा नहीं लगता, अगर हम 2-4 पन्ने ना पढ़ें तो हमें रात को नींद नहीं आती। तो ये सारी भावना यदि हम सब मनुष्यों में भर दें तो हमारी अध्ययन की आदत का विकास हो सकता है। यही उद्देश्य डॉक्टर पनिकर जी का था, यही उद्देश्य माननीय प्रधानमंत्री जी का है। तो मुझे लगता है कि हम सब अगर इस पथ पर आगे बढ़ते रहे तो एक दिन वो होगा कि भारत संपूर्ण साक्षर देश के रूप में विकसित होगा, जिस प्रकार से केरल विकसित हुआ है। तो मुझे मेरा मानना है कि इन शब्दों के साथ मैं श्री पनिकर जी को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। साथ ही 2 दिन पूर्व चीन में जो कुछ हुआ उसमें जो हमारे सैनिक मारते हुए शहीद हुए हैं, उन 20 सैनिकों को भी मैं अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ, श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। और अंत में मैं
मैं श्रीमती नीता भटनागर जी, डॉक्टर सीमा जैन जी, सिद्दीकी जी, श्रीमती डॉक्टर सुषमा जी, संतोष जी, आप सबको हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ और आपका अभिनंदन करते हुए आपको बारंबार धन्यवाद देती हूँ। मैं आभारी हूँ कि आपने मुझे इस अवसर पर 2 शब्द बोलने का परिचय दिया। मैं आपका अधिक समय नहीं लूंगी। जय हिंद, जय भारत। नीता जी अनम्यूट कर लीजिए। अब अंत में मैं आदरणीय श्रीमती पुष्पा शर्मा, डॉक्टर जमाल अहमद सिद्दीकी, समस्त टीचिंग स्टाफ, अपनी प्राचार्य डॉक्टर सीमा जैन, समस्त ऑफिस स्टाफ और छात्रों का हृदय से धन्यवाद देना चाहूंगी। सारे सबसे अधिक धन्यवाद है अपनी प्राचार्य डॉक्टर सीमा जैन, डॉक्टर संतोष और ऑफिस स्टाफ देना चाहूंगी, जिनके बिना ये कार्य बिल्कुल संभव नहीं था। यदि आप मुझे कुछ बोलने का अवसर दें तो मैं भी 2 बात कहूँ। हाँ जी। सर्वप्रथम मैं श्रीमती पुष्पा शर्मा जी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ कि बहुत सुंदर शब्दों में उन्होंने पर्निकर जी के बारे में हमें बताया और बताया कि कैसे उन्होंने अपना दिन रात एक कर दिया ये लाइब्रेरी को के प्रचार में। और जब कोई व्यक्ति अपनी मतलब स्किन से बाहर निकल के काम करता है, एक अलग से काम करता है, तो वास्तव में वो बहुत ही बड़ा योगदान होता है समाज और देश के प्रति। और हम लोग भी जैसे शिक्षक हैं तो हमारा भी उत्तरदायित्व बनता है कि हम कैसे अपने समाज को, अपने देश को, अपने कॉलेज के थ्रू, अपनी छात्राओं के थ्रू हम और भी ज़्यादा उसको आगे ले जाएं। तो पुष्पा जी, मैं आपको बस बहुत बहुत धन्यवाद भी देना चाहती हूँ आपके एड्रेस के लिए और अपनी समस्त स्टाफ को। और एक चीज़ और जानकर मुझे बहुत खुशी हो रही है कि इस बार हमारा ऑफिस स्टाफ भी इस वेब गोष्ठी में शामिल हुआ है। हमारे कोतवाल जी और सुबोध गर्ग जी